This is again in continuation with the plasma membrane. We talked about the structure of the plasma membrane, which was given by Nicholson and Singer. They gave a model of plasma membrane, and this model, which was given by Singer and Nicholson, this is called fluid mosaic model. Right? So what we talked about is fluid mosaic model, where we talked about that we have the plasma membrane that consists of phospholipid bilayers. So these are the phospholipid molecules, right? And they are arranged in the form of two layers. This is phospholipid bilayer, and each phospholipid molecule, it has a polar head and it has two non-polar tails. Right? So these are phospholipid molecules, and then we have two types of proteins we talked about. We have some extrinsic proteins which are loosely attached to the membrane. They can be present on the E side, that is the extracellular side of plasma membrane, or C side. And there are some proteins which are embedded, like this is a protein which is embedded, this is a protein which is embedded, and these proteins which are on the periphery, they are called as extrinsic, and those which are embedded, they are called as intrinsic proteins. Right? So this was the structure of the plasma membrane, and then we talked about we have short oligosaccharide side chains which are linked to the protein molecules or to the lipid molecules, and they protrude out from the surface of the cell and they form cell coat or glycocalyx. So this portion which is outside the plasma membrane, where you have the oligosaccharide side chain, this is the glycocalyx, and it is present only in the animal cells. Plant cells, they have a cell wall. Right? So this model is called as the fluid mosaic model. Now, why this model has been named as fluid mosaic? What do we mean by mosaic word? Mosaic, it refers to the asymmetric distribution of proteins. Proteins are not symmetrically distributed. So mosaic refers to asymmetric distribution of proteins. This is the meaning of mosaic. It has been called as mosaic word. This mosaic word means there is asymmetric distribution of the proteins within the lipid bilayer, right? And then what do we mean by fluidity? Right? We say the membrane is quasi-fluid. It is called fluid mosaic model. The membrane जो है वो fluid है. That is why it is called fluid mosaic model. And what do we mean by a quasi-fluid? That membrane is quasi-fluid. Quasi-fluid refers to the free lateral movement of most proteins and most lipids, and few proteins in the plane of membrane. What does it mean? It means that fluidity means what? Fluidity means जो lipid molecules हैं, they perform free lateral movement. ये जो lipid molecules हैं, within the plane they can move.
these phospholipids, they can move, no? This is the meaning of fluidity. Fluidity means the lipid molecules, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, they are able to perform free lateral movement. Lateral movement का मतलब है ये घूमते रहते हैं, right? अगर आप किसी लिपिड मॉलिक्यूल को टैग कर देंगे विद सम फ्लोरेसेंट सब्सटेंस, फ्लोरेसेंट मैंने जिसमें से लाइट निकलती है, तो आप देखेंगे जो लिपिड मॉलिक्यूल है, जो फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है, उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है. द मॉलिक्यूल्स दे कैन मूव विद इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन. तो ये मूव करते रहते हैं. प्रोटीन्स जो है दे कैन ऑल्सो शो लैटरल मूवमेंट, लेकिन जो प्रोटीन्स की मूवमेंट है वो बहुत कम है. जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो है वो मूवमेंट है. दैट इज द मीनिंग ऑफ fluidity. It is called as quasi-fluid, means the lipid molecules they perform free lateral movement. ये अपने ही प्लेन में घूमते हैं. But there is no flip-flop movement. Flip-flop movement का मतलब है कि यहाँ वाले जो molecules हैं वो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते. This is called as flip-flop. No, ये movement नहीं है, ये flip-flop movement है. फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि ये मेरा लिपिड मॉलिक्यूल है, तो ये लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा अपने प्लेन में कहीं पर, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ से ऐसे नहीं आ सकता. नो, दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप फ्लॉप. फ्रॉम वन लिपिड लेयर, फ्रॉम द वन लेयर टू द अदर लेयर, ऐसे नहीं आ सकता. दिस इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप. क्योंकि अगर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगी, मान लीजिए ऐसे, तो जो इसका पोलर हेड है इट हैज़ टू पास थ्रू दी सेंट्रल हाइड्रोफोबिक रीजन. अगर इसकी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगी, अगर मॉलिक्यूल जो है वो यूं है, मॉलिक्यूल एक लेयर में, इसका पोलर हेड है, अगर ये यूं जाएगा, राइट, तो क्या होगा कि इसका जो पोलर हेड है इट हैज़ टू पास टू द हाइड्रोफोबिक जोन. तो इसलिए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होती है. मूवमेंट जो है वो विद इन द प्लेन होती है. लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे घूमते रहते हैं अपने प्लेन के अंदर. नो, दे कैन मूव लाइक दिस, बट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम हेयर टू here. So fluidity का मतलब यही है कि जो प्रोटीन, जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं and some proteins only, they can have free lateral movement. That is why this model has been called as fluid mosaic model. So mosaic refers to the asymmetric distribution and fluid refers to the free lateral movement of the lipid molecules. But the lipid molecules only move within the plane of the membrane. There is no flip-flop, no, or there is very rare flip-flop. जो flip-flop movement है वो बहुत rare है. Why? Because the polar head has to pass through the हाइड्रोफोबिक रीजन. तो इसलिए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो नहीं होती है. नाउ द थिंग कम्स कि जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है वो क्यों है. नो, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस फ्लूइडिटी. ये जो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन की, हमारी मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड है. यहाँ पे फ्री लैटरल मूवमेंट्स हो रही है. लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है अपने ही प्लेन में जो है वो घूमते रहते हैं, राइट. दिस फ्लूइडिटी जो है, इट इज फ्लूइडिटी इज ड्यू टू इट्स लिपिड मॉलिक्यूल्स. अगर आप इनके ये लिपिड मॉलिक्यूल्स देखें ना, फॉस्फोलिपिड्स, तो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स जो हैं दे हैव हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा है. ये हमने पहले भी बात की थी कि ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर फैटी एसिड की चेन्स हैं. और फैटी एसिड्स जो हैं दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. अगर आप इन लिपिड मॉलिक्यूल्स को देखें तो इनके जो फैटी एसिड्स हैं वो अनसैचुरेटेड हैं. और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, राइट. और लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से
जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे जो बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है, जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पर मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड है। इट इज़ एग्जैक्टली जैसे मैं बात करूँ कि ऑयल, नो, ऑयल आपको मालूम है ऑयल क्या है, फ्लूइड है, नो, ऑयल कभी जमता नहीं है, ऑयल फ्लूइड है। ऑयल भी क्या है, ऑयल भी लिपिड्स है। ऑयल जो है वो फ्लूइड क्यों है, क्योंकि ऑयल के अंदर भी देर इज मोर अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होने की वजह से क्या होता है कि जो ऑयल का जो मेल्टिंग पॉइंट है जो है वो बहुत ही लो होता है, और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है इसलिए जो ऑयल है वो फ्लूइड है, राइट। इन कंट्रास्ट अगर मैं देखूं, जैसे कि मैं घी देखूं, नो, अगर मैं घी की बात करूं तो घी क्या है, घी जो है वो जम जाता है, नो। घी क्यों जम जाता है, क्योंकि जो घी है उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, नो। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। इस वजह से क्या होता है कि जो घी है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तभी घी जो है वो पिघलता है। अदरवाइज घी जो है वो लो टेम्परेचर पर क्या होता है, इट इज़ सॉलिडिफाइड। आप देखिए घी जो है वो गर्मियों में जो है घी पिघल जाता है। मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे, एक ऑयल है और एक घी है। ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, घी में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, इसलिए जब बहुत गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तभी घी पिघलता है। नहीं तो जो लो टेम्परेचर होता है उसमें जो घी है वो सॉलिडिफाइड रहता है। लेकिन जो ऑयल्स होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होता है, जो ऑयल्स हैं दे आर ऑलवेज फ्लूइड। तो इसी तरह से जिसमें जैसे ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं, और इसलिए ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए जो ऑयल है वो जो है वो लो टेम्परेचर पर भी जो है वो फ्लूइड स्टेट में मिलते हैं। इसी तरह से हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके जो लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स, उनमें भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है, इसलिए हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारे फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पर फ्लूइड स्टेट में है, राइट। दैट इज़ द रीज़न ऑफ दी फ्लूइडिटी। सो हमारी मेम्ब्रेन फ्लूइड है, इसका मतलब क्या है कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं दे परफॉर्म फ्री मूवमेंट, और हमारी मेम्ब्रेन लिपिड फ्लूइड क्यों है, बिकॉज इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, और इसलिए हमारे बॉडी टेम्परेचर पर, जैसे 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है। से मैं कहूँ इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 10 है, 12 है, 10-12 पे ये मेल्ट हो जाते हैं, तो 37 पर तो ये मेल्टेड ही रहेंगे। तो इसलिए जो हमारी जो हमारे फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पर हमारी जो मेम्ब्रेन है वो लिक्विड स्टेज में है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक जैसे ऑयल जो है वो हमेशा फ्लूइड स्टेज में होते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन भी जो है हमारी फ्लूइड की है। जैसे ऑयल्स के अंदर भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जो लिपिड्स हैं वह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। जैसे ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, तो इसलिए ऑयल भी जो है फ्लूइड स्टेट में होते हैं और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फ्लूइड स्टेट। तो दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग कि हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जहाँ पर होगी वहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही कम होगा, तो इसलिए क्या होता है वहाँ पर जो है वो फ्लूइडिटी होती है, राइट। तो फ्लूइडिटी जो है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स, बिकॉज दे हैव हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ही लो है। इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एट द बॉडी टेम्परेचर और फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पर जो है एट फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर इट इज फ्लूइड।
जैसे ऑयल जो है वो हमेशा फ्लूइड होते हैं बिकॉज ऑफ अनसैचुरेशन, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है, राइट। ऐसे ही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, तो इसलिए हमारे जो फिजियोलॉजिकल बॉडी टेम्परेचर है उस पर वो हमेशा क्या रहेगी, फ्लूइड की स्टेट में रहेगी। लेकिन अगर हम मेम्ब्रेन को एक्सपोज करें टू वेरी लो टेम्परेचर, तो अगर बहुत लो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। अगर टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या है, सॉलिडिफिकेशन का मतलब है जो मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, जो है लिपिड मॉलिक्यूल्स की पैकिंग हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाएंगे, पैक्ड हो जाएंगे, और जो मूवमेंट्स है उनकी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिडिफाई हो जाएगी। अगर आप बहुत लो टेम्परेचर करो, आपने 0 डिग्री टेम्परेचर दे दिया, 2 डिग्री टेम्परेचर दे दिया, उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेचर दे दिया, तो क्या होगा, बहुत लो टेम्परेचर पर द मेम्ब्रेन अंडरगोस सॉलिडिफिकेशन। और अगर मेम्ब्रेन सॉलिडिफाई हो जाएगी, इट लूजेस इट्स फंक्शन, राइट। इसके फंक्शंस में इसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है दैट विल बी लोअर डाउन, राइट। और इसकी जो परमिएबिलिटी है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, will be lower down, so it is not able to transport the molecules across it, और इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं they are not able to function। तो मेम्ब्रेन जो है वो जो है सॉलिडिफाई जो है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए एट इन दोज प्लांट्स जो है जो बहुत ही लो टेम्परेचर पर होते हैं, इन प्लांट्स दैट ग्रो at low temperature, right, जो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जैसे हैं, नो, हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं when they are exposed to low temperature they increase the unsaturated fatty acids in their plasma membrane, ठीक है। सो इन प्लांट्स में विच आर ग्रोइंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड विद द टेम्परेचर इज टू लो, वहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत कम होता है, तो जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है वहाँ पर और भी ज़्यादा कम हो जाता है, तो दे increase the number of unsaturated fatty acids in their plasma membrane so that the plasma membrane should not get solidified, right। तो ये जो है वो प्लांट्स करते हैं। सो मेम्ब्रेन जो है वो लो टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई हो जाती है, तो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कौन करता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, इट स्टेबलाइजेस मेम्ब्रेन, राइट। कोलेस्ट्रॉल जो है वो कैसे स्टेबलाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो बफर का काम करता है, इट वर्क्स एज बफर। बफर का मतलब है इट प्रिवेंट्स ओवर फ्लूइडिटी, ये ओवर फ्लूइडिटी को भी रोकता है एंड इट प्रिवेंट्स सॉलिडिफिकेशन, दोनों चीज़ें रोकता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स कहाँ होते हैं, बिटवीन फैटी एसिड चेन्स, फैटी एसिड चेन्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं, ये ओवर फ्लूइडिटी भी रोकते हैं और सॉलिडिफिकेशन भी। ओवर फ्लूइडिटी कब होती है, एट हाई टेम्परेचर,
जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा फ्लूइड हो जाती है, राइट। उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। सो हाई टेम्परेचर पर जो कोलेस्ट्रॉल है वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है मूवमेंट को, इट रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, राइट। और जब लो टेम्परेचर होता है सॉलिडिफिकेशन, तो वो क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल है, इट कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स द पैकिंग, इट प्रिवेंट्स द पैकिंग ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, उनको पैक नहीं होने देता। सो दोनों काम ये करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लूइडिटी भी अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉलिडिफिकेशन भी अच्छी नहीं है, राइट। तो इसलिए जो है जब हाई टेम्परेचर होता है, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट, तो अगर हाई टेम्परेचर होता है तो जो मेम्ब्रेन है दैट टेंड्स टू शो ओवर फ्लूइडिटी, तो ओवर फ्लूइडिटी को कोलेस्ट्रॉल रोकेगा। और अगर टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है एंड जो है वो सॉलिडिफिकेशन के चांसेस हो जाते हैं, तब जो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो पैकिंग को प्रिवेंट करता है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो बफर की तरह काम करता है और ये सॉलिडिफिकेशन और इसको भी रोकता है, राइट। लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो सब एनिमल्स में ही होता है, प्लांट्स में नहीं होता। और प्लांट्स जो है वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, विच आर ग्रोइंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, दे इंक्रीज द number amount of unsaturated fatty acids in their plasma membrane. This is how they are able to live under such conditions of low temperature. Otherwise at such low temperature their membranes will undergo freezing, right? उनमें freezing हो जाएगी। Then ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, this is the most acceptable model. Why this is most acceptable model? Because number one, it shows it explains the fluidity and the dynamic nature. Right? ये मेम्ब्रेन हमें बताता है कि जो मॉडल बताता है कि जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड है और डायनामिक है। ये मेम्ब्रेन हमें बताता है, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल स्पेसिफिसिटी, कि जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस बिकॉज दे हैव डिफरेंट इंटीग्रल प्रोटीन्स, एंड दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स the transport of water soluble substances, जो पोलर हैं, जो वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस हैं, वो कैसे मूव करते हैं अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द वेरिएबल रेशो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इन डिफरेंट मेम्ब्रेन्स। हर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स का और लिपिड्स का जो रेशो है वो डिफरेंट है। और अगर मैं आरबीसी की बात करूं तो ये जो रेशो है प्रोटीन्स का और लिपिड्स का, दिस इज 52:40, right? Because most of the work has been done in RBC, so we accept this model because it explains the dynamic nature, it explains why different membranes perform different function, it explains how the polar molecules they can pass across it, and it explains why different membranes they have different ratio of proteins and lipids. It is not fixed, and for RBC this is this, okay? So this is all about the plasma membrane. So हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं, the model which has been proposed by Singer and Nicholson, it is called fluid mosaic model. This is a fluid mosaic model, and it is called fluid mosaic. Why? Because mosaic refers to asymmetric distribution, the proteins are not symmetrically distributed, and it is called as fluid because the
plasma membrane is quasi-fluid, that is why it is called as a fluid model. And what do we mean by fluid और क्वासी फ्लूइड मीन्स जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने प्लेन में जो है वो घूमते रहते हैं, राइट। और अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को टैग कर देंगे विद एनी फ्लोरेसेंट डाई और मॉलिक्यूल, यू विल सी इट इज़ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस। प्रोटीन्स में मूवमेंट कम होती है और लिपिड्स में ज़्यादा होती है, लेकिन जो भी मूवमेंट है वो प्लेन में होती है। मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ नहीं आ सकता, इट कैन नॉट कम लाइक दिस, दैट इज़ कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ आएगा तो इट दिस पोलर हेड इट हैज़ टू पास थ्रू दी नॉन पोलर सेंटर, इसलिए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होती है। एंड देन मेम्ब्रेन फ्लूइड क्यों है? इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स लिपिड मॉलिक्यूल्स विच हैव these fatty acid chains which have high degree of unsaturation, और इसलिए जो melting point है इन फैटी एसिड्स का बहुत कम होता है, और इसीलिए हमारी जो बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है उस पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड है। तो जो इसकी जो फ्लूइडिटी है इट इज़ यूनिक टू इट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इट इज़ जस्ट लाइक जो ऑयल है वो भी लिपिड्स हैं, ऑयल भी हमेशा फ्लूइड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फ्लूइड होती है। ऑयल फ्लूइड क्यों होते हैं? क्योंकि ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और ऑयल का भी मेल्टिंग पॉइंट कम है, और हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी अनसैचुरेशन की वजह से मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो इसलिए जैसे ऑयल फ्लूइड होते हैं वैसे मेम्ब्रेन भी फ्लूइड होती है। लेकिन जो घी है, मक्खन है, ये जो है फ्लूइड नहीं होते, ये जो है सॉलिडिफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है, इसलिए जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तब वो मेल्ट करते हैं, गर्मियों में नहीं तो वो जमे रहते हैं, राइट। लेकिन ऑयल कभी नहीं जलते, हमेशा फ्लूइड रहते हैं, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही लो होता है। तो इसलिए हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर वो लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो जो है फ्लूइड स्टेज में होते हैं। तो इसलिए जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड है, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि अगर मेम्ब्रेन को आप बहुत लो टेम्परेचर देंगे तो मेम्ब्रेन जो है इट अंडरगोज सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब है मॉलिक्यूल्स की पैकिंग हो जाती है, उनकी मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी एंड इट विल लूज ऑल इट्स फंक्शंस। और मेम्ब्रेन जो है वो ओवर फ्लूइड ना हो, या मेम्ब्रेन जो है वो ओवर सॉलिडिफिकेशन ना हो, उसका जो स्टेबलाइजेशन का जो काम है वो कोलेस्ट्रॉल करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एनिमल सेल्स में ही सब प्रेजेंट होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है फैटी एसिड चेन्स के बीच में प्रेजेंट होती है, राइट। और ये जो है वो स्टेबलाइजेशन का काम करती है, और ये ओवर फ्लूइडिटी को भी रोकती है और सॉलिडिफिकेशन को भी रोकती है। ओवर फ्लूइडिटी हो जाती है मेम्ब्रेन की जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट कर देती है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो एंड मेम्ब्रेन टेंड्स टू अंडरगो सॉलिडिफिकेशन, तो कोलेस्ट्रॉल जो पैकिंग को जो है वो रोकता है। सो इन अ वे it is going to maintain the stabilize the structure, it prevents the over fluidity at high temperature, it prevents the solidification at low temperature। और जहाँ तक प्लांट्स की बात है जो बहुत लो टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, जहाँ हाई ऑल्टीट्यूड्स पर ग्रो करते हैं, वहाँ उनकी जो मेम्ब्रेन है वो सॉलिडिफाई नहीं होती है, राइट, बिकॉज दे हैव हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। सो दिस प्रिवेंट्स द सॉलिडिफिकेशन this prevents the solidification of plasma membrane, right, at low temperature. So ये जो plants हैं they are adapted to live under at low temperatures, और उनकी membrane जो है solidify नहीं होती because they increase the number of unsaturated fatty acids, right. I hope you must have understood.